go to the SCCM server. मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. सर्वर मैनेजर को we don't require. ऐसा क्यों बता रहा है भाई? ओके, सो अभी जैसे हमने EXE एप्लीकेशन डिप्लॉय किया था, EXE एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए हमको? हमको एक इंस्टॉलेशन मेथड चाहिए, अनइंस्टॉलेशन मेथड चाहिए और डिटेक्शन मेथड चाहिए. इन दी सेम मैनर जब हम प्रोग्राम डिप्लॉय करते हैं, तो प्रोग्राम के लिए भी हमको दो चीजें चाहिए. फर्स्ट लेट्स लॉन्च द सिस्टम सर्वर मैनेजर. सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर लॉन्च करते हैं हम. तो हम आज प्रोग्राम कैसे पैकेज कैसे डिप्लॉय करना है वो देखेंगे. उसके बाद रिपोर्टिंग सर्विसेज रिपोर्टिंग सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे, एसक्यूएल रिपोर्टिंग सर्विसेज. उसके बाद हम रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट करेंगे और रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगर करेंगे. सो लेट्स गो टू आवर SCCM सर्वर. सो अभी सबसे पहले हमको क्या चाहिए? इफ वी गो टू सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, हमको एप्लीकेशन मैनेजमेंट में पैकेज डिप्लॉय करना है. तो पैकेज के लिए हमको चाहिए दो चीजें, इंस्टॉलेशन मेथड एंड अनइंस्टॉलेशन मेथड. और हमको चाहिए एप्लीकेशन. ठीक है, तो वी विल डाउनलोड फायरफॉक्स. हम चलते हैं गूगल पे. मैं डाउनलोड करता हूँ फायरफॉक्स MSI डाउनलोड. फ्रंट मोशन से भी कर सकते हैं हम और मोजिला से भी कर सकते हैं. मैं फ्रंट मोशन फायरफॉक्स डाउनलोड कर लेता हूँ. तो हमको MSI इंस्टॉलर चाहिए. गो टू डाउनलोड. यहाँ पे हमको सारे वर्जन अवेलेबल है. गो टू 64 बिट. ये हम 99 वर्जन या 117 वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं. सो वी विल गो टू 110 वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं. और इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए हमको. सो गो टू इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश US. डाउनलोड चालू हो गया है मेरा. इट इज डाउनलोडिंग MSI फाइल. 83 MB का है. अप्रोक्स 1 to 2 मिनट्स लगेंगे.
આ બધા લેંગ્વેજ ના પેલા છે ને ફૂલ ફોર્મ છે, મતલબ છે ને પેલું જે શું પાછળ કહે જે છે? EN ને આવે છે, જે આ જે વર્ઝન હા પછી જે લેંગ્વેજ છે લખેલું ને, આવે, બરોબર? હા એ લેંગ્વેજ છે, લેંગ્વેજ. ફોર એક્ઝામ્પલ BR છે, બ્રાઝિલિયન લેંગ્વેજ છે, બરોબર. AF છે, આફ્રિકાની લેંગ્વેજ છે. CA કનેડિયન, કેનેડા રિજન માટે છે, બરોબર. પછી FR ફ્રાન્સ માટે છે, FI ફિનલેન્ડ માટે છે, EU યુરોપ માટે છે, બરોબર. ES એટલે સ્પેન માટે છે. આ બંને સ્પેનિશ, આ ચારે સ્પેન માટે છે, સ્પેનિશ રિજન માટે, બરોબર. આ ઇંગ્લિશ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે છે. આ ઇંગ્લિશ યુરોપિયન સ્ટેટ્સ, આ ઇંગ્લિશ કેનેડા. આ લેંગ્વેજ છે. જે એ જાપાન, IT ઇટલી, NL નેધરલેન્ડ્સ. હવે એ બધું इट इज अ लैंग्वेज. तो हमने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स का लैंग्वेज सेलेक्ट किया है. MB मेरा डाउनलोड हो गया है. बाकी अप्रोक्स 21 MB पेंडिंग है, 22 MB पेंडिंग. Okay, it is almost done. We'll wait for more 10 to 20 seconds. That is verifying the installer. हो गया है हमारा. हम डाउनलोड्स के फोल्डर में जाएंगे, फायरफॉक्स के एप्लीकेशन को उठा लेंगे. फिर गो टू एप्लीकेशन जो हमारा शेयर फोल्डर है, और यहाँ और उसमें हमारी फाइल को रख देंगे. अभी फिलहाल हमको जरूरत नहीं है. अभी हम आएंगे स्क्रीन we'll डिलीट write it. चाले We'll છે say તમારી create a package. સ્ક્રીન ડીલે Sorry ભાવિક, થાય છે કે Screen સ્ક્રીન તમારી delete? ડીલે જગદીશ एक તારી मिनट સ્ક્રીન में બરોબર भी દેખાય છે? સ્ક્રીન બરોબર દેખાય છે? હા, રૂકો હું રિજોઇન કરું છું. एक એક મિનિટ ઉભો રહે, ઉભો રહે, હું એક મિનિટ. ઇન્ટરનેટ ચેન્જ કરું છું. વેટ સ્ટોક થઈ ગઈ લાગે છે સ્ક્રીન. જસ્ટ તો કહું છું. વેટ I'll change internet connection. વોઇસ કનેક્શન પણ પૂર આવે છે. હવે બરોબર છે વોઇસ? હા, વોઇસ ઇઝ ઓકે. સ્ક્રીન ઇઝ ઓલસો ઓકે. Yeah, screen is also okay. Now you can share the screen. સ્ક્રીન બરોબર છે હવે? Uh, હવે બરોબર છે દેખાય સ્ક્રીન? છે. yes.
કારણ કે હું મારા ઘરે આઈ એમ નોટ ઇન બેંગ્લોર, આઈ એમ ઇન હોમ ટાઉન, એટલે કદાચ હું વાઇફના હોમ ટાઉનમાં છું બીકોઝ ઓફ હોલી, એટલે અહીંયાનું ઇન્ટરનેટ થોડું મે બી સ્લો હોઈ શકે છે. ઓકે, we'll come back. So अभी हमने we'll start from again. I'll start from 0. We'll cancel it. We'll right click on the packages. We'll select create a package. We'll give the package name. So I'll say Front Motion Firefox. I'll say here Firefox 1110 version. Manufacturer, I'll say Front Motion. Language is English. Version is 110. The package contains source files. I'll say yes. We'll browse. Local folder on the server or network path. We'll give the network path. Right. So double // CCM01 applications. Firefox. And this is our folder. Okay. We'll move next. We'll say standard program next. So I'll give the program name install Firefox. Now I'll give the command for installation. So that will be I can browse it or I can give the installation method. So my installation method I'll write here on the notepad first. मैं पहले notepad पर लिख लेता हूँ installation method. So मेरा installation method होगा msi ex.exe/i for installation. फिर यहाँ पे हमारा फाइल का नेम आएगा /q और uninstallation method में क्या आएगा? So we'll write both here first. Uninstallation method भी define कर देता हूँ मैं. मुझे फाइल का नाम चाहिए तो we'll go to the location जहाँ पे हमने हमारा फाइल रखा है. E drive, applications, Firefox और ये हमारा फाइल का नाम है. We'll copy this file with extension. ये हमारा इंस्टॉलेशन मेथड हो गया. अभी अनइंस्टॉलेशन में आई की जगह पे हम x डाल देंगे अनइंस्टॉलेशन के लिए. सो ये मेरा इंस्टॉलेशन मेथड है और ये मेरा अनइंस्टॉलेशन मेथड है. सो मैं ये इंस्टॉलेशन मेथड कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ. स्टार्टअप फोल्डर मुझे नहीं चाहिए, रन मोड हिडन चाहिए, यूजर को नहीं दिखना चाहिए इंस्टॉलेशन हो रहा है. यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं लॉग्ड इन है, वेदर और नॉट अ यूजर इज लॉग्ड इन. ठीक है. रन और runs with UNC name और requires specified drive letter. requires drive letter मैं बोलता हूँ UNC name से रन करेगा, चलेगा, मेरे को कोई इशू नहीं है. We'll move next. उसके बाद run another program first. कोई मुझे डिपेंडेंसी देनी है, पहले वो प्रोग्राम रन हो फिर मेरा फायरफॉक्स इंस्टॉल हो. यहाँ कोई डिपेंडेंसी देनी है, जैसे मुझे चाहिए भाई ये सिर्फ विंडोज 10 पे इंस्टॉल होना चाहिए फॉर एग्जांपल, मल्टी सेशन वाले विंडोज पे या विंडोज 64 बिट पे ही या विंडोज 7 पे ही. और भाई मुझे बोलना है भाई जिस मशीन पे कम से कम 500 MB का डिस्क स्पेस फ्री हो. ठीक है. और मल्टी सेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी सेशन? मल्टी सेशन यानी मल्टी यूजर हो गया. एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स कैन लॉग इन. वो जनरली हम क्लाउड में यूज करते हैं VDI एनवायरनमेंट में. ओके. एक ही विंडोज 10 OS होगा, उस पर एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स लॉग इन करके काम कर सकते हैं. VDI में हम यूज करते हैं, वो ब्राउजर के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, वो मल्टी सेशन हो गया. तो मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे कोई पहले प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करना है, ना ही मेरे कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है, प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, सारे प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेबल है. एस्टिमेटेड डिस्क स्पेस मुझे चाहिए 500 MB और मैक्सिमम अलाउड रन टाइम है मेरा 30 मिनट्स का. ये मैंने क्राइटेरिया डिफाइन किया है. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड क्लोज.
अभी ये मेरा फायरफॉक्स 110 क्रिएट हो गया है। हम समरी देख सकते हैं, प्रोग्राम्स में जाए तो अभी हमारे पास एक प्रोग्राम है इंस्टॉल फायरफॉक्स। तो अभी हम अनइंस्टॉल प्रोग्राम इसमें डालेंगे। विल राइट क्लिक, मैं बोलूंगा क्रिएट प्रोग्राम, स्टैंडर्ड प्रोग्राम, नेक्स्ट। मैं बोलूंगा अनइंस्टॉल फायरफॉक्स और मैं यहाँ पे अनइंस्टॉलेशन मेथड दे दूंगा। अगेन रन मोड हिडन चाहिए मुझे, यूजर लॉग्ड इन है नहीं लॉग्ड इन है कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट। कोई डिपेंडेंसी नहीं है पहले, ना प्रोग्राम की ना प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट की। मिनिमम डिस्क स्पेस 500 MB चाहिए और अनइंस्टॉलेशन टाइम 30 मिनट्स इज मैक्सिमम, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड क्लोज। तो मेरे दो प्रोग्राम्स है इधर अभी, एक इंस्टॉल फायरफॉक्स, एक अनइंस्टॉल फायरफॉक्स। ये इस कमांड से एग्जीक्यूट होंगे हिडन मोड में। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले कंटेंट डिप्लॉय कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अभी कंटेंट मेरा डिप्लॉयड नहीं है, वी कैन सी, सॉरी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फिर राइट क्लिक ऑन दी फायरफॉक्स, हम डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट करेंगे, नेक्स्ट। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऐड करेंगे हम, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड क्लोज। मेरा कंटेंट अभी डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगा। हम कंटेंट स्टेटस चेक करेंगे 10 सेकंड के बाद। लेट्स गो एंड चेक द कंटेंट स्टेटस। ये मेरा इन प्रोग्रेस है, विल वेट फॉर अ मोमेंट। हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारे ये कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, राइट। मेरा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अभी हम जाके डिप्लॉय करेंगे। So let's go to the software library, पैकेजेस में मेरे पास फायरफॉक्स है, प्रोग्राम्स में जाएंगे, सॉरी फायरफॉक्स पे जाएंगे, राइट क्लिक, डिप्लॉय करेंगे। अभी मुझे पूछ रहा है आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है इसमें से, तो मैं ब्राउज करूंगा तो मैं बोलूंगा मुझे फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है, मुझे ये प्रोग्राम पुश करना है, इस पैकेज में से मुझे ये प्रोग्राम पुश करना है। इंस्टॉल फायरफॉक्स सिलेक्ट कर लिया हमने, कलेक्शन सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं बोलूंगा सारे सर्वर्स पे मुझे पुश करना है। मैं ऑल सिस्टम सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी ऑल सर्वर्स या ऑल डिवाइसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें एक विंडोज 10 मशीन है और नहीं तो हाँ ऑल डिवाइसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। और लेट बी ऑल सिस्टम्स कर लेते हैं हम, ऑल सिस्टम्स ले लिया मैंने, नेक्स्ट। अभी मेरा कंटेंट ऑलरेडी इस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी मुझे फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कोई और डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास एक ही डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। विल मूव नेक्स्ट। अभी एक्शन में इंस्टॉल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉलेशन पर्पस के लिए है। पर्पस हम रिक्वायर्ड या अवेलेबल दे सकते हैं, तो मैं रिक्वायर्ड मोड दे दूंगा। विल मूव नेक्स्ट। अभी हम यहाँ पे शेड्यूल डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ भाई ये इस यूजर को 1 अप्रैल से अवेलेबल होना चाहिए, तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ भाई 1 अप्रैल रात को 12 बजे से अवेलेबल हो जाएगा। उसकी एक्सपायरी भी सेट कर सकता हूँ भाई ये 30 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं, लेकिन यहाँ पे असाइनमेंट शेड्यूल मांग रहा है। अगर मैं स्टार्ट शेड्यूल नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से न्यू करके बोल सकता हूँ भाई असाइन इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट, आफ्टर दिस इवेंट, तो इमीडिएटली असाइन कर देगा। और रीरन बिहेवियर, तो रीरन इफ फेल्ड प्रीवियस अटेम्प्ट, अगर प्रीवियस अटेम्प्ट मेरा फेल हो गया तो रीरन होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास नेवर रीरन डिप्लॉयड प्रोग्राम, ऑलवेज रीरन प्रोग्राम, रीरन इफ सक्सीडेड ऑन प्रीवियस अटेम्प्ट। तो मैं
रीरन तो अगर सक्सीड हो गया तो फिर से क्यों रीरन करना है, फेल्ड हुआ तो ही हमको रीरन चाहिए, तो मैं ये डिफॉल्ट ऑप्शंस रहने देता हूँ। विल मूव नेक्स्ट। अलाउ यूजर्स टू रन द प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली ऑफ असाइनमेंट्स, नॉट एप्लीकेबल, मैं बोलूंगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, विल गो विद दिस। सिस्टम रीस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन, मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसको सिलेक्ट करूंगा तो यूजर का मशीन रीस्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। अभी यहाँ पे मेरे पास डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस है, रन प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, यानी वो नेटवर्क से इंस्टॉलेशन करेगा जिसमें बैंडविड्थ कंज्यूम हो सकता है और इंस्टॉलेशन अटक सकता है। तो इससे अच्छा मैं सिलेक्ट करूंगा डाउनलोड कंटेंट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, तो डाउनलोड करेगा, जैसे हमने कल 1 2 3 4 फोल्डर्स देखे थे सीसीएम कैश में, ठीक है, वो डाउनलोड करेगा पहले फिर इंस्टॉलेशन करेगा। सो विल गो विद दिस ऑप्शन। Select the deployment option to use when a client uses a distribution point from neighbor boundary, तो अभी इसको हमारे पास तो नेबर बाउंड्री है नहीं, ना ही मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, तो इसका हमको एक्शन का कोई लेना देना नहीं है। We'll move next, next and close। तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट हो चुका है। हम अभी जाके सॉफ्टवेयर सेंटर को ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर सेंटर कहाँ गया? वेट फॉर मोमेंट, कल का एप्लीकेशन, हाँ कल का एडोब रीडर तो दिखा रहा है हमको ना? कल हमने एडोब रीडर ही डाला था, एडोब रीडर ही डाला था, लेकिन और एक एप्लीकेशन होना चाहिए ना। मैं कहूँ टोटल 7 जीप आरडीपी, आरडीपी नहीं दिखा रहा है इसमें। मे बी मेरा सिस्टम अनएक्सपेक्टेडली शट डाउन हुआ इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। कल का शायद पॉलिसी सेटिंग्स चेंज हो गया हो मे बी, बस मेरा सिस्टम अनएक्सपेक्टेडली रीबूट हो गया था। फाइव मिनट्स ही ओके, विल वेट फॉर 5 मिनट्स।
We'll try to manually run the policy. ये हमारा फ्रंट मोशन फायरफॉक्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है, वी कैन सी इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमारे पास आइकॉन भी आ गया है। कैसे आया? क्योंकि हमने पुश किया था पैकेज को। अभी मुझे ये अनइंस्टॉल करना है, तो अनइंस्टॉल मैं कैसे कर सकता हूँ? अनइंस्टॉल के लिए हमने जो अनइंस्टॉल प्रोग्राम बनाया है उसको हम पुश करेंगे। सो विल गो टू प्रोग्राम्स, सॉरी विल गो टू पैकेज, राइट क्लिक, डिप्लॉय, we'll select the software that is uninstalled Firefox. Okay, मैं collection select करूंगा, मैं collection select कर रहा हूँ all systems. Next, मेरा already content distributed है। Next, तो ये मेरा required option में आएगा। Next, again ASAP, as soon as possible. Next, software installation. Next, locally do not run the program neighbor boundary से, एंड हमने पुश डिप्लॉय कर दिया। विल वेट फॉर 5 मिनट्स, पॉलिसी रीरन होगी, ऑटोमेटिकली वो अनइंस्टॉल कर देगा। ये इंस्टॉल अनइंस्टॉल जो आपने पैकेज सिलेक्ट किया वो कैसे बनाया था कि डाउनलोड किया है? नहीं, हमने इंस्टॉलेशन मेथड और अनइंस्टॉलेशन मेथड के बेसिस पे बनाया ना। ओके, वो यूज कैसे किया उसको बनाया था वो? हमने पैकेज में जाके फिर जैसे ही मैंने पैकेज बनाया, इधर राइट क्लिक किया, क्रिएट प्रोग्राम किया। जब मैंने पैकेज क्रिएट किया था तब हमने इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम क्रिएट कर दिया था, फिर मैंने अनइंस्टॉलेशन का प्रोग्राम सेलेक्ट किया, स्टैंडर्ड प्रोग्राम। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया अनइंस्टॉल ओके 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 फायरफॉक्स, अनइंस्टॉलेशन का डिटेक्शन मेथड दे दिया और नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट तो करके कमांड कमांड दिया था। हाँ हाँ कमांड दिया था। ओके ओके। अभी थोड़ी देर में ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, तो इसको हम बैकग्राउंड में चलने देते हैं। मैं SCCM सर्वर का कंसोल क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम देखेंगे रिपोर्टिंग सर्विसेज। अभी हमको SCCM में कोई भी रिपोर्ट्स पुल करनी हो तो वो कैसे पुल होती है, कैसे डिस्प्ले होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए I'll minimize this and I'll open MS Paint। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे मेरा SCCM सर्वर है और पैरेलली मेरा SQL सर्वर काम कर रहा है जो डेटाबेस सर्वर है।
अभी एसक्यूएल सर्वर में हम एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, तो एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज का एक इंस्टेंस बनता है जहाँ पे सारे रिपोर्ट्स स्टोर होते हैं। तो भाई ये एसक्यूएल सर्वर के रिपोर्ट्स एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज के थ्रू स्टोर होंगे एसक्यूएल में, इतना समझ में आ गया। लेकिन एससीसीएम सर्वर पे हमको डिस्प्ले कैसे होंगे? तो एससीसीएम सर्वर पे हमको एक रोल इंस्टॉल करना पड़ता है जो रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट है, रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट। अभी ये क्या करता है? ये आपका एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज के साथ बात करता है और यही हमको रिपोर्टिंग सर्विसेज से पुल करके आता है रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट, और हमको रिपोर्ट्स डिस्प्ले करवाता है। तो डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स भी हमको डिस्प्ले करवाता है और हम कस्टम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। तो अभी हमने कल क्या देखा था? कल हमारे कंसोल में रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं थे, नो आइटम्स टू डिस्प्ले था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये भी रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट भी इंस्टॉल्ड नहीं है और एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज भी इंस्टॉल नहीं है। तो पहले हम एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे, उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट का रोल इंस्टॉल करेंगे हमारे साइट सर्वर पे और उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम 10 से 15 मिनट के बाद हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो रिपोर्ट्स आज हम नहीं देखेंगे, रिपोर्ट्स हम जब सॉफ्टवेयर अपडेट्स या कुछ और चीज़ें हम कर लेंगे, उसके बाद रिपोर्ट्स पुल कर लेंगे। तो लेकिन आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे रिपोर्टिंग सर्विसेज इंस्टॉल करने का और रिपोर्टिंग सर्विस पॉइंट इंस्टॉल करने का रोल हम आज कंप्लीट कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज डाउनलोडेड है हमारे एससीसीएम इंस्टॉलेशन फाइल्स में। मेरे पास एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज, इसे हम एसएसआरएस भी बोलते हैं, एसक्यूएल सर्वर एसएसआरएस रिपोर्टिंग सर्विसेज। विल डबल क्लिक इट, इसको हम रन करेंगे। वी विल रन इट। दो इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं, ओके। I'll select install reporting services point। तो मैं चूज अ फ्री एडिशन, तो इवैल्यूएशन मोड में सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसका लाइसेंस लेना पड़ता है हमको, रिपोर्टिंग सर्विसेज का एड ऑन लाइसेंस लेना पड़ता है एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। तो अभी हम इवैल्यूएशन जाएंगे जो 180 डेज के लिए अवेलेबल है, इसको हम क्लोज कर देंगे। यस, क्योंकि हमारा एक इंस्टेंस पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, फ्री एडिशन के साथ जाएंगे हम, नेक्स्ट, लाइसेंस टर्म्स एक्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट, इंस्टॉल रिपोर्टिंग सर्विसेज ओनली, विल से नेक्स्ट। ये हमारा पाथ रहेगा इंस्टॉलेशन का, एंड इंस्टॉल। यस, meanwhile we'll wait। इससे हमको क्या रिपोर्ट सब मिलेगा यहाँ से? नहीं, ये एसक्यूएल से बात करेगा और एसक्यूएल के जरिए ये एसक्यूएल में सारा अपना रिपोर्ट स्टोर करेगा। ठीक है, ये बात करेगा एसक्यूएल सर्वर, सॉरी, रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट के हमारे एससीसीएम के रोल के साथ, और रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट हमको रिपोर्ट्स डिस्प्ले करवाएगा हमारे एससीसीएम कंसोल में। क्लियर? यस।
ये हमारा इंस्टॉल हो गया है, अभी कॉन्फ़िगर करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ कॉन्फ़िगर रिपोर्ट सर्वर बोल सकता हूँ, या यहाँ पे जाके मैं रिपोर्ट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे भी क्लिक कर सकता हूँ और कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अभी इस पे हम क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि मेरे डेस्कटॉप पे जो फायरफॉक्स का आइकॉन था चला गया है, यानी मेरा अनइंस्टॉलेशन प्रोग्राम सक्सीड हो गया है और हमको स्टार्ट मेन्यू में भी करंट वर्जन फायरफॉक्स नहीं दिख रहा है, यानी अनइंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। राइट, सो विल क्लिक कॉन्फ़िगर रिपोर्ट सर्वर, यस। तो बोल रहा है आप एसक्यूएल सर्वर पे लॉगिन कीजिए, ये मेरा एसक्यूएल सर्वर का नेम है, क्योंकि मैं सेम सर्वर पे ही मैंने एसक्यूएल सर्विसेज डिप्लॉय करके रखी है। सो विल सिलेक्ट कनेक्ट, और यहाँ पे मेरा दिखा रहा है कि मेरा एसक्यूएल सर्वर इवैल्यूएशन एडिशन है और सर्विस स्टार्टेड है। रिपोर्टिंग सर्विसेज की इंस्टेंस आईडी मेरा है SSRS। सो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, मुझे स्टॉप करके इंस्टेंस आईडी नया बनाना है तो मैं बना सकता हूँ, बट आई विल नॉट डू दैट। बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस आईडी के साथ जाऊंगा। हम सर्विस अकाउंट पे आएंगे, तो उसने बोल रहा है यूज बिल्ट इन सर्विस अकाउंट, वर्चुअल सर्विस अकाउंट, तो मुझे बिल्ट इन सर्विस अकाउंट नहीं चाहिए, मुझे अपना डोमेन का सर्विस अकाउंट चाहिए। सो मेरा डोमेन है sp/sccm, पासवर्ड दे देंगे हम admin@123, और अप्लाई कर देंगे। कभी-कभी 2-5 मिनट लगता है, सो हमको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वी विल वेट फॉर अ मोमेंट। लोग साइलेंट मोड में एट ए टाइम कितने प्रोग्राम इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं? मल्टीपल, अनटिल वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। ओके। अनइंस्टॉल जैसे जैसे हम लोग अगर विंडोज में कुछ इंस्टॉल करते हैं तो एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। टेक्निकली वो एक ही होगा, दूसरा क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, ओएस उस प्रोग्राम को लेगा और इंस्टॉलेशन रन करेगा। तो जब इंस्टॉलेशन रन करेगा तो दूसरा इंस्टॉलेशन क्यू में जाके लैंड हो जाएगा। अगर पहले वाले इंस्टॉलेशन को रीस्टार्ट चाहिए तो जब तक मशीन रीस्टार्ट नहीं होगा तब तक दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो एट ए टाइम एक ही सर्विसेज चलता रहेगा, ऐसा है? हाँ, हाँ, ठीक है। ये मेरा सर्विस अकाउंट दे दिया है मैंने, सक्सेसफुली टास्क कंप्लीटेड हो गया, उसने डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी वेब सर्विस यूआरएल पे जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये मेरा वेब सर्विस यूआरएल उसने बना दिया है, HTTP मेरे सर्वर का नाम पोर्ट नंबर 80/report server, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसने ऑटोमेटिकली वर्चुअल डायरेक्टरी रिपोर्ट सर्वर ले लिया है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ रिपोर्ट सर्वर 1, तो ये मेरा यूआरएल भी चेंज हो जाएगा। तो मैं भी इसको कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, आई लीव एज इट इज। ठीक है, मैं सिर्फ इसको अप्लाई कर दूंगा। ये हमको सेम यूआरएल हमारे SCCM के कंसोल में भी दिखेगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, लेट्स कॉपी इट। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये गूगल क्रोम में रन हो रहा है, हम इसको रन करवाएंगे, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सर्विस अनअवेलेबल बता रहा है, तो हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हम डेटाबेस पे आएंगे, तो यहाँ पे हम चेंज डेटाबेस करेंगे, क्योंकि ना हमारा SQL सर्वर बता रहा है, ना डेटाबेस नेम, ना रिपोर्ट सर्वर मोड बता रहा है। तो हम चेंज डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू रिपोर्ट सर्वर डेटाबेस करेंगे, नेक्स्ट। ये मेरा सर्वर नेम है SQL सर्वर का,
करंट यूजर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यानी मेरा SCCM का सर्विस अकाउंट यूज कर रहा है। विल टेस्ट कनेक्ट, कनेक्शन मेरा सक्सेसफुल है यानी मेरा क्रेडेंशियल्स काम कर रहा है, यानी इसको मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, कुछ छेड़खानी नहीं करूंगा। नेक्स्ट, तो ये मेरा डेटाबेस नेम होगा रिपोर्ट सर्वर, टेम्प डेटाबेस नेम होगा रिपोर्ट सर्वर टेम्प, लैंग्वेज होगा इंग्लिश, रिपोर्ट सर्वर मोड होगा नेटिव। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप सर्विस क्रेडेंशियल्स लिया है उसने, मैं विंडोज क्रेडेंशियल्स भी दे सकता हूँ, डोमेन/यूजर, तो मैं डोमेन/यूजर दे दूंगा sp/sccm एंड पासवर्ड। विल मूव नेक्स्ट। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है। नेक्स्ट, तो अप्लाई कर रहा है सारी चीजों को और डेटाबेस क्रिएट कर रहा है। एंड विल क्लिक फिनिश। सारा सक्सेस आ गया। यहाँ पे मेरा क्रेडेंशियल्स भी आ गया रिपोर्टिंग सर्विस डेटाबेस के लिए और डेटाबेस भी बन गया। विल वेट। फिर हम चलेंगे वेब पोर्टल URL, जहां से हम वेब पोर्टल से वेब URL से हम रिपोर्ट्स पुल कर सकते हैं। सो विल गो टू वेब पोर्टल URL। अभी हम वेब पोर्टल URL मेरा क्या होगा, वर्चुअल डायरेक्टरी रिपोर्ट्स है और ये मेरा लिंक होगा। ठीक है, पहले हम इसको अप्लाई कर देंगे। ये मेरा अप्लाई हो गया। ठीक है, इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, इसको हम बाद में कॉपी करेंगे। डेटाबेस पे जाके एक बार वैलिडेट कर लेंगे, हमने अप्लाई नहीं किया था लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो चुका है। वेब पोर्टल URL हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है, इससे हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अगर आपको ईमेल सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी है, आपको ईमेल पे चाहिए रिपोर्ट्स, तो आप ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स में आप जा सकते हो अगर आपने कुछ सब्सक्रिप्शंस लिए रखे हैं। ठीक है, सो कॉन्फ़िगर एन अकाउंट टू बी यूज्ड बाय सब्सक्रिप्शंस टू एक्सेस फाइल शेयर्स, यूज एन अकाउंट विथ एन मिनिमम परमिशंस एज पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको रिपोर्ट्स कहीं स्टोर करवाना है तो वहां पे आप फाइल शेयर डिफाइन करवा सकते हो और अकाउंट का क्लाउड पे ये डिफाइन करवा सकते हो। तो बाकी चीजों की हमें जरूरत नहीं है। विल क्लिक एग्जिट। अभी हम SCCM सर्वर कंसोल पे जाएंगे और हम यहाँ पे वापस रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे। हम देखेंगे क्या अवेलेबल है रिपोर्ट्स के अंदर। हम चलेंगे मॉनिटरिंग में और मॉनिटरिंग में रिपोर्टिंग। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट मैनेजर और रिपोर्ट सब वो कुछ नहीं दे रहा है हमको। इसको एक्सपांड करेंगे और रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे नो आइटम्स फाउंड दिखा रहा है। ठीक है, नो आइटम्स फाउंड। क्यों नो आइटम्स फाउंड? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट इंस्टॉल नहीं किया है, तो मेरा SCCM सर्वर अभी SQL के साथ बात नहीं कर, मतलब SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज के साथ बात नहीं कर रहा है। डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से SQL से बात कर रहा है, लेकिन रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा है। दोनों लेयर अलग है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे
हम साइट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, सर्वर्स एंड साइट सिस्टम रोज पे जाएंगे, तो अभी हमारे पास ये रोज इंस्टॉल्ड है। सो विल राइट क्लिक, ऐड साइट सिस्टम रोज, सो यहाँ पे हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, विल जस्ट मूव नेक्स्ट। प्रॉक्सी भी नहीं चाहिए हमको, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे हमको सिलेक्ट करना है रोल, तो यहाँ पे हम रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट, विल मूव नेक्स्ट। तो ये बोल रहा है साइट डेटाबेस सर्वर क्या है आपका, डेटाबेस सर्वर ये है, डेटाबेस नेम ये बनेगा आपका, वो सही है कि नहीं, विल क्लिक वेरीफाई, तो वेरीफाई कर लिया, सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है। फोल्डर नेम ये बनेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग सर्विसेज सर्विस इंस्टेंस, तो इंस्टेंस नेम आ गया SSRS, जो हमने SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के वक्त बताया था, और कौन सा यूजर मेरा सर्विस अकाउंट यूज करेगा उससे बात करने के लिए, तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, हमारा जो हमने ये डिफाइन करके रखा है, विल सेलेक्ट ओके, सारी चीजें हमने दे दी, नेक्स्ट। तो यहाँ पे समरी ऑप्शंस दे रहा है आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है, विल मूव नेक्स्ट, और वो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट सर्वर रोल को, एंड क्लोज कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट करें हमारे सर्वर रोल को, विल जस्ट गो बैक एंड कम बैक, तो यहाँ पे मेरा रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट आ गया है, पहले जो नहीं था। अभी हम मॉनिटरिंग पे जाएंगे, अभी यहाँ पे रिटर्निंग लिस्ट आइटम्स, तो हो सकता है ये काम कर रहा है अभी, ये इमीडिएटली डिस्प्ले नहीं करेगा, इसको 10 मिनट से 30 मिनट लगेगा आराम से, ठीक है। इसको 10 मिनट से 30 मिनट आराम से लगेगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसको क्लोज कर सकता हूँ और कंसोल को वापस लॉन्च करता हूँ, तो हो सकता है हमको कुछ-कुछ रिपोर्ट्स दिखा दे। हम अभी रिपोर्ट्स नहीं देखेंगे ओपन करके, सिर्फ प्रीव्यू करेंगे, मतलब दिख रही है कि नहीं दिख रही है कंसोल के अंदर ही, हम कोई रिपोर्ट्स रन नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स हम आने वाले सेशंस में देखेंगे जब हम मॉनिटरिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। विल गो टू रिपोर्टिंग एंड रिपोर्ट्स, तो अभी भी ये रिटर्निंग लिस्ट कर रहा है, यानी ये रन कर रहा है रिपोर्ट सारी। ये रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट मेरा SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज के साथ बात कर रहा है। We'll close it and we'll relaunch it. Again, go to monitoring, reporting, reports. So no items list दिखा रहा है, तो वो as I convert 10 minutes to 30 minutes लेगा। मैं इसको ऑन रहने देता हूँ मेरे SCCM सर्वर को, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। Meanwhile, we'll conclude the session, उसको हम देख लेंगे कल। Yes, and most important thing, what is the update about कल?